آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ تمام جتنے مقدسین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اردو میں تو مقدس ہی لکھا ہے، بائبل میں مقدسین بھی لکھا ہے، اور انگلش آپ سب جانتے ہیں، انگلش میں بائبل میں سینٹس لکھا ہوا ہے، تو آپ سینٹس ہو، بائبل نے کہا ہے، اور اس لیے آج آپ کا حوصلہ اور پہلو سے بڑھا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب بھی خداوند کے لوگ خطوط میں سلام کرتے تھے وہ کہتے تھے تمام مقدسین کو کیا کہو، تمام، انگلش میں لکھا ہے تمام سینٹ، تمام مقدسین۔ تو میں بھی آج تمام مقدسین کو جو یسوع مسیح کے لہو سے دھل گئے ہیں سلام کہتا ہوں۔ آپ کی ویلیو بہت ہے، صرف آپ غور نہیں کرتے یا آپ بائبل پڑھتے یا آپ بائبل سنتے یا بائبل کی آپ تحقیق کرتے۔ آپ مقدسین ہو، کیوں مقدسین ہیں؟ اپنے کاموں سے نہیں، یسوع مسیح کے لہو سے ہم دھل گئے، اور پھر خداوند کے آپ بیٹے اور بیٹیاں، اور پھر لکھا ہے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا نو۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں جب خدا کی حضوری میں آتے ہو دلیری سے، مسکراتے ہوئے اور خوشی سے اس کی حمد کرو، جیسے کوئی اپنے باپ کے سامنے بچے خوشی مناتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور ہم جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں بات کرتے ہیں یتیموں کی طرح، غریبوں کی طرح، ہم جا نہیں سکتے، ہماری آنکھیں نہیں کھل سکتی، خدا ہم تیری حضوری میں جھک نہیں سکتے، ہمارے ہونٹ نہیں کھل سکتے، تو اس لیے آپ دلیر ہو کے اس کی حضوری میں آیا کریں اور خوشی منایا کریں اور اس کی پرستش اسے باپ جان کر کے یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے کیا کریں، وہ آپ پر بہت خوش ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں اور نکالیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 7واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں
اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اتوار کی عبادات میں پچھلے کئی اتوار کی عبادات میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ how you laying foundation of your home، کہ آپ اپنے گھر کی بنیاد کس طرح رکھتے ہیں۔ گھر اینٹوں کا ہو یا ہمارا نیچرل خاندان ہو یا گھر روحانی گھر چرچ، ہمارا تعلق خدا سے اور چرچ سے ہو، بنیاد جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو گھر کسی طرح کا بھی ہو، جب آندھیاں چلیں گی، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے، اور اگر گھر چٹان پر نہیں ہوگا، گھر کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو وہ گھر گر جائے گا۔ لیکن جس کی بنیاد مضبوط ہوگی، ہم کئی پیغامات میں اسی موضوع پر سیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر شوہر اور بیوی سے بنتا ہے، نیچرل خاندان، اور نیچرل خاندان کی بنیاد شوہر اور بیوی ہے۔ اگر اس کی بنیاد مضبوط ہی نہیں تو وہ گھر پہ قائم نہیں رہتا، خوشحال۔ اور ہمارا موضوع ہے گھر کس طرح رکھ رہے ہو۔ جب شوہر اور بیوی پاک بندھن میں باندھے جاتے ہیں تو گھر سچائی پر ہو، اس کی بنیاد محبت پر ہو۔ اگر اس کی بنیاد لالچ پر ہوگی، جھوٹ پر ہوگی، کچھ چھپا کر کے ہوگی، تو گھر بن تو جائے گا لیکن آگے جا کے وہ کیا ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوبارہ دہراتا ہوں۔ رشتہ کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، بڑی بڑی عمارت دکھاتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دکھاتے ہیں، لیکن جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو، سچائی پر نہ ہو، وہ آگے جا کے کیا کرے گا؟ جب پتہ چلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گڑبڑ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر گھر جو نیچرل ہے اس کی بنیاد کلام پر نہیں، جو یسوع مسیح چٹان ہے ہماری، اس پر نہیں، اس کی تعلیم پر نہیں، تو طوفان تو آئیں گے، پھر بھی سیلاب آئیں گے، ہے نا؟ مقابلہ سخت ہوگا۔ میں نے شروع میں پہلے میسج میں کہا کہ جب شادی ہوتی ہے، شوہر اور بیوی بنتے ہیں، اس سے پہلے لڑکی لڑکا سوچتے ہیں شادی ہے، یہ بہت جناب بڑے بڑے اچھے ڈریسز ہوں گے اور بڑے بڑے کھانے ہیں، بڑے بڑے جناب بڑی آنر ہے، بڑی عزت ہے، بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں جناب، بڑی عزت ہو رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ جی، دولہا دلہن آ گئی ہے، کھڑے ہو جاؤ جی، اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ جی، اور دولہا اور جن کی شادی بھی وہ سوچتے ہیں اسی طرح رہے گا۔ لیکن میں نے بہنوں کو پوچھا کتنے سال اس طرح رہتا ہے شوہر اور بیوی میں بھی، وہ کہتے ہیں، کئیوں نے تو یہ کہا کہ چند ماہ کی بات ہے، سالوں کی۔ اگر بنیاد مضبوط چٹان اس کی تعلیم اور سچائی اور سچی محبت پر ہو، جھوٹی محبت پر نہیں۔ آج کل تو لوگ فیک بک، میں اسے کہتا ہوں، فیس بک نہیں میں کہتا، میں اسے کیا کہتا ہوں؟ فیک بک، جو تصویر دکھاتے ہیں نا،
جو دکھاتے ہیں ہم کار کیا رہے ہیں، مرسڈیز کار کے آگے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کتوں نمتے ہیں تصویریں بنا رہے ہیں. کئیوں کو تو میں خود جانتا ہوں کہ ہر میں کہنے ہیں تو بولتے ٹیوٹا بھی. تو جب شادی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ مرسڈیز کتنا گئی، کہتے نہیں چوری ہو. اس طرح کے جب ہم کام کرتے ہیں اور والدین بھی سچی باتیں اور وہ بھی اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں، نقصان کا باعث. اور ماں باپ کو بھی سچی باتیں بتا دینی چاہیے. ہماری لڑکی اور لڑکا اتنا پڑھا ہے، یہ کام کرتا ہے، پہلے کہتے نہیں ہوتی تنخواہ کتنی ہے، 60 2.5 لاکھ، یا باہر دے ملک جو ہوتا ہے اکا ہی جھوٹ، کیونکہ پتہ نہیں باہر کی کر رہے. باہر کیا ہے جی، باہر بہت بڑا بزنس ہے. بڑی یہ میں باتیں کیوں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ جب گھر آباد ہوں، سچائی پر ہوں، پھر وہ قائم رہتے ہیں. جب جھوٹ نکل آئے تو پھر لڑائیاں کیا ہو جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے پھر دیکھ لیں آگے آ جائے روحانی گھر، وہ اس کے بارے میں ہم نے سیکھا. بہت ساری باتیں ہیں، صرف میں شارٹ کرتا ہوں. ہمارا تعلق چرچ سے. چرچ خدا کا گھر ہے. چرچ کا مطلب بلڈنگ ہی نہیں، کلیسیا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا کیا ہو، مقدس ہو، خدا کا گھر ہو، خدا کا گھرانہ. اور جب ہم بائبل مقدس میں سے ہم نے پہلے بھی پڑھا، افسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط 2 باب 19ویں اور 20ویں آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. لکھا ہے کہ اب تم پردیسی اور مسافر، مقدسوں کے ہم وطن، سینٹس، جو ان کا وطن ہے آپ کا بھی وہی وطن. خدا کے گھرانے کے ہو گئے، رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، کیا کیے گئے ہو، تعمیر کیے گئے. نبیوں اور رسولوں کی جو بنیاد ہے اس پر ہم تعمیر کیے گئے ہیں. اور لفظ کیا لکھا ہے کہ تم اب خدا کے گھرانے کو، روحانی خاندان. ہمارا تعلق خدا کے ساتھ، ہمارا تعلق چرچ کے ساتھ، یعنی چرچ مطلب کلیسیا، بلڈنگ نہیں، لوگ ہیں، تعلق ہیں. کس بنیاد پر ہم چرچ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی سنا، کلیسیا جسے ہم کہتے ہیں، یا خدا کے ساتھ. اور زیادہ کر دیں، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کن بنیادوں پر ہے؟ کس بنیاد پر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے؟ ایسا مضبوط رشتہ، ایسی مضبوط بنیاد ہو کہ جب طوفان آئیں، آزمائشیں آئیں، آندیاں چلیں، کال پڑیں، بے دینیاں بڑھ جائیں، تو اگر تو بنیاد ہماری خدا کے ساتھ مضبوط سچائی پر، سچی محبت پر ہوگی، تو کوئی چیز، جس طرح پالوس کہتا ہے ہم کو مسیح کی محبت سے، نہیں تو چھوٹی جنی آزمائش تو ہی، وہ محاورہ پنجابی سے کہ ٹینڈ تو ہی ریڑ پہنا، کہ خدا تو میری ہے نہیں گال مانی. کیونکہ بنیادیں ہماری کیا ہوتی ہیں؟ مضبوط نہیں ہوتی. سچائی پر شاید نہ ہو، شاید وہ بھی روحانی بنیاد بھی شاید لالچ پر ہی ہو کہ ہم خدا کے پاس، اگر خدا یہ دے گا تو ٹھیک ہے، نہ دے خدا کو ہم کو
तो बाइबल मुकद्दस में हमने लिखा है, पढ़ा है और लिखा हुआ पढ़ा है हमने कि ऐसा घर बनाओ चट्टान पर, यीशु मसीह पर, खुदा के पाक कलाम उसकी तालीम पर, कि आंधियां आए, तूफान आए, लेकिन आपका रिश्ता चर्च के साथ, आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो। ये कह लेने दीजिए मुझे, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं, मैं पूरी दुनिया फिरा भी हूँ, आप जानती हो, पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि चर्च में भी लोग हो जाते हैं जी चर्च से कोई दुनियावी फायदा हो। तो ऐसा है या मैं गलत कह रहा हूँ? आप नहीं अकेले, यदि आपका मतलब कि पाकिस्तान के ही शायद लोग ना हो, ये मतलब है सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाओ, अमेरिका में जाओ, मैं जो मेरे दोस्त हैं गोरे वो भी इसी तरह कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हमें दुनियावी फायदा कहाँ होगा, और नहीं तो इज्जत ही कहाँ मिलेगी। अगर इज्जत नहीं मिलती वो लोग छोड़ देते हैं, इस्तकबाल नहीं मिलता, वो चर्च को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कोई दुनियावी फायदा नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो फिर ढूंढते फिरते हैं, पूरे वर्ल्ड में चक्कर लग रहे हैं। लेकिन अगर हमारी मोहब्बत खुदा के साथ सच्चाई पर हो, लालच पर ना हो, सच्ची मोहब्बत खुदा के साथ हो, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको खुदा से दूर नहीं कर सकती और आप रूहानी तौर पर गिर नहीं सकते, आप चलते रहेंगे। इसलिए ये बाइबल में से मैंने पढ़ के सुनाया है कि अगर घर रेत पर होगा, आंधियां आएंगी, गिर जाएंगे। कई लोग चलते चलते खुदा से दूर हो गए, कई खादम खिदमत करते करते खुदा से दूर हो गए, कईयों ने मिनिस्ट्री का आगाज किया फिर क्या हो गए, और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको जो मकसद था पूरा हो गया तो फिर क्या किया, फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया। अब काम क्या करना है, अब खिदमत क्या करनी है, अब इबादत क्या करनी है, अब क्या कलाम सुनाना, जो काम होना था, जो जिसके लिए आए थे वो अब खत्म हो गया। किन बुनियादों पर हम अपना घर तामीर करना चाहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा था, दोहरा रहा हूँ, थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। ये हमारा जो मौजू है उसका 12वां हिस्सा है। ये पैगाम जो है, पहला कुरिन्थियों 10वां बाब 4 आयत में लिखा है कि पौलुस रेफरेंस दे रहा है पिछला, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हमारी चट्टान मसीह है, जिसकी बुनियाद पर, जिस चट्टान पर जिसका जिक्र किया गया है, रसूल भी है, नबी भी है और उसकी कलीसिया भी है। जो मत्ती की इंजील मैंने पिछली दफा भी पढ़ा, आप पढ़ता नहीं हो, दोहराता हूँ, मत्ती की इंजील मुकद्दस 16वां बाब में पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि लोग मुझे, किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, किसी ने क्या कहा, एलिया, किसी ने क्या कहा, हम क्या कहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह ने सवाल किया, ओके, लोग जो मर्जी कहें, आप मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह ने शागिर्दों पर क्या किया, सवाल किया, और पतरस ने कहा कि तू
जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी, तू और इस, जो पतरस पेट्रा, इसके मानी मैंने पिछली दफा भी बताया, इसका मतलब है छोटा कंकर जो फेंका जाता है, हिल जाता है। और जो यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर पर, वो ग्रीक वर्ड है चट्टान, जो यीशु मसीह खुद है। तू और इस, यानी मेरी कलीसिया मुझ पर, जो मैं चट्टान हूं, कायम होगी, और उस कलीसिया पर आलम अरवा के दरवाजे हरगिज गालिब ना आएंगे। हमारा ईमान, हमारी चट्टान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। और बाइबल मुकद्दस में हम एक और हवाला निकाले और ये हम पढ़ ही लेते हैं। यशाया नबी का सहीफा, उसका 28वां बाब और 16वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा कि जो पुराने अहदनामा के नबी भी तमाम मैंने सुनाया था आपको, उनका ईमान, उनका मौजू भी खुदावंद यीशु मसीह ही था। और जो 40 साल बनी इस्राएल बियाबान में पानी पीते रहे, वो हवाला मैंने पढ़ के सुनाया, वो चट्टान यीशु मसीह ही था। और जो उन्होंने मन खाया आगे आके यूहन्ना की इंजील में हमने सुना, पढ़ा कई दफा कि यीशु मसीह ने कहा वो जिंदगी की रोटी भी मैं। पुराने अहदनामा के लोगों का भी ईमान किस पर था? चट्टान पर था। और यहाँ यशाया 28वां बाब 16वीं आयत में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। देखो, मैं सिय्योन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, मुहकम बुनियाद के लिए, कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। हालेलुया। ये जो चट्टान है जिसके बारे यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये चट्टान, ये पत्थर, इसके बारे में क्या लिखा है? ये आजमूदा पत्थर है। इसलिए जिसका ईमान यीशु मसीह पर होगा वो कायम रहेगा अब तक। आजमूदा पत्थर है, टेस्टेड स्टोन, जिसे आजमाया गया कई दफा, शैतान ने आजमाया। जब 40 दिन का रोजा रखा, गेत्सेमनी में भी शैतान ने आजमाया। खुदावंद यीशु मसीह आजमाया गया, लेकिन वो सारी आजमाइशों पर गालिब आया और मौत और कब्र और गुनाह और शैतान पर गालिब आया। और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो भी कभी गिर नहीं सकता है, वो आजमाया हुआ है। और फिर क्या लिखा है? आजमाया हुआ पत्थर भी है, ये चट्टान है, पत्थर यहाँ लिखा गया है। और फिर लिखा है कि वो मुहकम बुनियाद के लिए मजबूत पत्थर पर रखा गया है। उससे बुनियाद मजबूत होती है, जो इस पर तामीर किए जाते हैं, वो मजबूत पत्थर है। और फिर लिखा है वो कीमती पत्थर है। हालेलुया। वो आम सा पत्थर नहीं है।
क्योंकि बुनियाद में जब पत्थर रखा जाता है, बुनियाद जिन ईंटों से बनाई जाती है वो हमेशा, जिनको नॉलेज है या जिन्होंने घर बनाए हैं, सबसे ज्यादा मजबूत अगर ईंटें हो तो ईंटें, या उस वक्त पत्थर भी बुनियाद में रखे जाते थे, सबसे मजबूत और सबसे मजबूत पत्थर और सबसे मजबूत ईंटें बुनियाद में लगाई जाती थी। क्यों? कि बुनियाद पर ही जब घर तामीर किया जाएगा तो वो घर हिलेगा नहीं, चाहे ज़लज़ले आ जाए, तो आ जाए, आंधियां चले, तो जिसकी बुनियाद पीली कहते हैं ईंटों पर होगी या पत्थर ही ऐसे हो जो देखने में तो पत्थर रहते हैं लेकिन बड़े कमजोर पत्थर हों, उन पर हम बुनियाद रख लें, जो खुद मजबूत नहीं, जो खुद पाक और कुद्दूस नाम नहीं, जो खुद कीमती नहीं। अगर हमारी बुनियाद, हमारे ईमान की बुनियाद उस पर होगी तो फिर रूहानी घर भी कायम नहीं रहेगा। लेकिन यीशु मसीह का शुक्र हो कि आप जिस पर ईमान रखते हो वो मजबूत चट्टान है। हालेलुया। आपका ईमान जिस पर है वो आजमूदा पत्थर है, वो खुदा गालिब आया और अपने लोगों को भी आजमाइश में गालिब होने की कुव्वत अता करवाता है। ऐसा खुदा यीशु मसीह लिखा है। तो वो आजमाइश में से निकालने की राह भी क्या करता है, क्या करता है, और फिर वो कीमती पत्थर है। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा का इकलौता बेटा है और उसने कीमती खून बहाया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारी खलासी सोने और चांदी से बल्कि किससे हुई है? खुदावंद यीशु मसीह के कीमती लहू से हुई है। वो बहुत कीमती है यीशु, क्योंकि वो खुदा का इकलौता बेटा है और यीशु मसीह ने जो खुदा का बेटा है अपना खून बहाया है, इसलिए वो कीमती है, इसलिए उसका खून कीमती है कि हमारी खलासी बड़ों और बकरों और बैलों के खून से नहीं हुई बल्कि यीशु मसीह के लहू से हुई है। हालेलुया। इसलिए हमारी बुनियाद अगर यीशु मसीह पर है तो यकीनन ये रूहानी घर, रूहानी रिश्ता कायम रहेगा यीशु मसीह के आने तक। और उसकी बादशाहत में उसके लोग जाएंगे, उस पर मौत और आलम अरवा के दरवाजे हरगिज़ गालिब न आएंगे। उन्हें कोई दूसरी मौत का डर नहीं होगा, क्योंकि उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से वो धुल गए हैं, इसलिए वो कायम रहेंगे। क्योंकि खुदा का बेटा जो है वो हमारी चट्टान है जो चुना हुआ है। अगर पहला पत्रस 2 बाब 6 आयत हम लिख लें तो लिखा है, देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा शर्मिंदा ना होगा। ये पत्थर वो चट्टान जिसकी भी रूहानी बुनियाद
रूहानी जिंदगी की बुनियाद, चर्च की बुनियाद, रूहानी रिश्ते की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह पर होगी। बाइबल कहती है कि वो कीमती भी है, मजबूत पत्थर भी है। और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में कि वो चुना हुआ पत्थर भी। खुदा ने हमारी निजात के लिए उसे चुना है। हालेलुया। एक ही नाम को चुना, एक ही नाम के वसीले से निजात है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? आसमान के तले निजात के लिए खुदा का बेटा, ऐसा पत्थर चुना गया है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, कलाम मुकद्दस में, कि जिस मेहमानों को अमाल की किताब 4 बाब 11वें आयत में लिखा है, ये वही पत्थर है, हालेलुया, जिसे तुम ये देखे क्या लिखा है, जिसे तुम मेहमानों ने हकीर जाना और वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। मेहमान ये किन से मुखातब है? खुदा का बंदा। मेहमान कौन है? ये किन से मुखातब था? ये बाइबल में मैंने पढ़ के सुनाया। मजहबी लीडर, उस वक्त के आलिम, स्कॉलर, फकीह, फरीसी, ये पढ़ ले, ऊपर की आयतें मैंने नहीं पढ़ी। जो बड़े बड़े लंबे लंबे चोगे पहनते फकीह फरीसी थे, शरीयत के शरा के आलिम, सदर नशीनी, ये बारे में लिखा मत्ती की 23वां बाब पढ़ ले, लिख ले। और लोगों से नबी कहलाना पसंद करते थे। ये शरह के आलिम, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े मजहबी लीडर, बड़े बड़े जामे पहने हुए, इन मजहबी लोगों को खुदा का बंदा क्या कह रहा है कि तुम मेहमानों ने जिस पत्थर को रिजेक्ट कर दिया, उसे माने नहीं। आज भी कई लोग हैं, आप हैरान होंगे कि आज भी है। हाँ जी, आज भी है। जो कहते हैं बड़ा बड़ा स्कॉलर, बड़ा बड़ा मजहबी बंदा, बड़ा बड़ा मजहबी लीडर है, उसने ये कह दिया, उसकी बात की बड़ी अहमियत है, उसकी बात ही मानी जाती है क्योंकि वो बड़ा मजहबी लीडर है। आप समझते हैं कौन सा बड़ा आपकी निगाह में मजहबी लीडर है? ये बाइबल की बातें सिखा रहा हूं। दुनिया की निगाह में कौन सा बड़ा मजहबी लीडर आपके सामने है? दुनिया की निगाह में कह लूं, चलो आपके सामने नहीं, आसान कर देता हूं। उस वक्त फकीह थे, फरीसी थे, आलिम थे, स्कॉलर थे, उनका हुक्म चलता था। आज भी इस दुनिया में है इस तरह के लोग, बड़े बड़े होते हैं, हुकूमत भी उनकी मान सकती है, पब्लिक भी वो कहते हैं जो वो कहे वो सुनो, उसने ये कहा, उसने ये कहा। और इन्हीं को खुदा का बंदा कहता है, तुम मेहमानों ने जो खुदा की कलीसिया को बना रहे थे, या हैकल को या चर्च को कहे मेहमान, तुम जो घर खुदा का बनाने में शामिल हो गए हो, मेहमान। मेहमान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं मेहमान? हाँ, वही मत, जो चर्च काम करने वाले। और ये बाइबल में से मैंने लिखवाया है, अपने से नहीं कह रहा। उसने कहा तुमने उसको रद्द किया, पत्थर को। क्या मिस्त्री बनाते हैं ना, कई दफा ईंटें लगाते हैं
कई दफा मिस्त्री कई ईंटों को क्या करता है, फेंक जाता है। अगर किसी ने घर बनवाया हो, पेट नहीं बैठता, फिर उन्हें तोड़ देने, फिर इकट्ठे की हो जाने ने रोड़े। तो इस तरह के मजदूरी पेट नहीं बैठती है। तमीर पेट नहीं बैठती, उसे क्या करते हैं? तो मेहमानों ने इस पत्थर को यानी खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के घर में समझा कि यह फिट नहीं हो सकता, ये तो नई तालीम देने वाला है, ये तो सबक को भी तोड़ने वाला है, ये तो शरीयत को भी तोड़ने वाला है, ये तो हमारे खिलाफ बातें करता है, ये तो सच्चाई बयान करता है, ये तो कहता है कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो। ये तो हमें कहता है रिहा करो, ये हमारे लिए फिट नहीं बैठता, ये हमारी तालीम पर नहीं चलता, ये हमारी शरीयत पर नहीं चलता, ये हमारे अपने जो कवानीन और रवायात बनाए हुए हैं, रवायात पर ये नहीं चलता, यीशु मसीह चलता नहीं है, ये को नई तालीम देता है। उन्होंने रद्द किया कि ये हमें फिट नहीं बैठता। और आज भी जो सच्चे लोग हैं ये सुन ले, आप कई कलीसियों में फिट नहीं बैठ सकते। अगर आप उनकी रिवायात पर नहीं चलेंगे तो आप फिट नहीं बैठ सकते, समझ लें। अगर आप उनके बनाए हुए मजहबी रिवायाती असूलों पर, इबादत के बनाए हुए रस्मी असूलों पर नहीं चलेंगे, आप फिट नहीं बनेंगे, आपको विरोध किया जाएगा। यहाँ तक लिखा हुआ है कि वो तुम्हें अपने इबादत खानों से भी क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है कि आज भी सच्चे प्रस्ताव आम रवायती और मजहबी लोगों में फिट नहीं हो सकते। ये मैं आपको कह दूं, खुदावंद यीशु मसीह शरा के आलम में फिट नहीं था, उन्होंने क्या कर दिया, ये मैंने पढ़ा, रद्द कर दिया। लेकिन फिर खुदा का बंदा क्या कहता है, जिस पत्थर को तुम मेहमानों ने क्या किया, रद्द कर दिया, उसी को खुदा ने कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। हालेलुया। अगर आप भी सच्चाई पर कायम रहें, अगर आप भी यीशु मसीह की बुनियाद पर चलते तमीर होते जाएं, तो यकीनन आप भी कोने के सिरे के खूबसूरत पत्थरों में तामीर होते चले जाएंगे। हालेलुया। इसी इमारत में लगते चले जाएंगे। वो घर जो खुदा बना रहा है, वो कलीसिया जो खुदा बना रहा है। मैं मुताला कर रहा था, मैंने इमेजेस भी देखी कि ये जो कोने के सिरे का पत्थर है, इसके दो पहलू हैं। एक वो पत्थर जो बुनियाद यानी नींव पर लगाया जाता है, और एक इस्तिलाह कोने के सिरे का पत्थर, वो पत्थर है कि पुराने दौर में शायद अभी बनता हो, पुराने दौर में कोने पर लगाते थे ऐसा पत्थर कि जो दो दीवारों को क्या करता था, जोड़ देता था। अभी कहीं होंगी, मैंने इमेजेस देखी हैं। और उस पत्थर पर जो मालिक होता था, जो कोने पर लगाया जाता था, फाउंडेशन का भी,
टर्मिनोलॉजी है और कोने पार्ट भी। पत्थर जो ऐसे कॉर्नर है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन ऐसे लगाते थे। और उस दौर में, अब शायद दौर बदल भी जाता है कंस्ट्रक्शन का, उस दौर में उसी पत्थर पर जो मालिक होता था उसका नाम लिखा जाता था और कंस्ट्रक्शन जो होती थी चीज उसकी तारीख भी लिखी जाती। तो कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए खुदावंद यीशु मसीह हमारी नींव, ईमान की नींव का भी पत्थर है और कॉर्नर का भी पत्थर है। और ये जो इमारत, ये घर खुदावंद बना रहा है, जिसकी बुनियाद यीशु मसीह है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर भी यीशु मसीह है, उस पर नाम बराका लिखा हुआ है। हालेलुया। आप किसकी मलकियत है? जो खुदा घर बना रहा है। पत्थर के खत में क्या लिखा हुआ है कि तुम तो पहले कोई कौम उम्मत ना थे, अब शाही कहनों का क्या हो। और फिर आगे पढ़ते जाए तो क्या लिखा है कि तुम खुदा की खास क्या हो। आप पर किसका नाम लिखा हुआ है? ये खुदा का घर जो वो तैयार कर रहा है, किसकी मलकियत लिखी हुई है? हालेलुया। खुदा के बड़े की आप मलकियत हो। और जब आप मलकियत थी, ये जो इमारत है, ये जो खुदा का रूहानी घर है, अगर उस पर बड़े का नाम लिखा हुआ है तो फिर चाहे जो मर्जी कब्जा ग्रुप आ जाए, वो अपनी मलकियत पर कब्जा होने देगा। पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप बड़े बड़े मशहूर है कि नहीं? मलकियत किसे दी? लेकिन चलो यहाँ पाकिस्तान में बेचारे जो गरीब लोग हैं, उनकी जगहों पर अमीर लोग क्या करते हैं? तो ये होता है कि नहीं कब्जा? चाहे उनका नाम ही लिखा, वो क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं और नाम को क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। और फिर क्या करते हैं? अपना नाम लिखते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी भेड़ें हैं उनको मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। किसकी जुर्रत है कि शैतान छीन ले? जो उसके पास आ गए हैं, जिसकी बुनियाद यीशु है, जिसकी बुनियाद यीशु का लहू है, जिसका फाउंडेशन स्टोन भी यीशु है, जिसका कॉर्नर स्टोन भी यीशु है, उस पर कोई शैतान जो है वो वार नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस तरह मुल्क मिस्र की गुलामी से जब निकले यीशु, और खुदा ने हुक्म दिया कि भरा लो और उसका खून क्या करो, चौकों पर लगाओ, ऊपरी भी लगाओ, दाएं भी लगाओ और बाएं भी लगाओ। तो फिर क्या होगा? मौत का फरिश्ता की करेगा? जिधे जिधे निशान है। और हम पर तो यीशु मसीह के लहू की मोहर है। हालेलुया। ना शैतान आप पर कब्जा कर सकता है। हालेलुया। और ना आलमरवार मौत के दरवाजे आप पर गालिब आ सकते हैं, क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह की मलकियत हो। हालेलुया। आप किसकी मलकियत हो? कहो मैं यीशु की मलकियत हूं। हालेलुया। किसी में जरूरत है आप पर कब्जा करे?
ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਤੋਂਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਸਵਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਇਹ ਕੀ आ गया आपके नजदीक क्या लिखा हुआ है ज़बूर में कि तेरे 10,000 भी दाहिने हाथ और फिर बाएं हाथ भी लेकिन वो तुम्हारे नजदीक दूरों दूरों डरा सकती हैं शैतानी कुव्वतां बदबूओं ख्याल ए काल ए मुसीबतां ए बीमारियां लेकिन आपने डरना है आप डरेंगे जब कोई तूफान है मुसीबत है बीमारियां है काल आए आप क्या कहें शैतान आए शैतान की छोटी छोटी उंगलियां आप क्या कहें आप नोट कर लें आप कहें कि मैं यीशु की मलकियत मैं यीशु की मलकियत हूँ हालेलुया तो शैतान और इसकी सारी कुव्वतें और ये ख्यालात और डराने हमें तो डराना ख्वाब है तस्वीर में पहुंचते फिर जी डराना ख्वाब आ गया जी उन्हें लगता है मैं नहीं बचना डराना ख्वाब आ गया उन पता नहीं मेरा की बन जाना है जब डराना ख्वाब है कहो मैं यीशु की मलकियत तो मुझे कुछ नहीं है जब कोई बुरी खबर सुने कहे मैं यीशु की मलकियत हूँ मुझे कुछ नहीं होना तूफान जितने मर्जी आए मैं यीशु की मलकियत हूँ मैं मुझे कुछ नहीं होगा मैं कायम रहूँगा हालेलुया बीमारियाँ जितनी मर्जी आए 4 अरब लोग बीमार हैं पूरी दुनिया में और नई नई बीमारियाँ आ रही हैं डॉक्टर लोग भी यहाँ बैठे हैं जिनका बड़ा मुताला है लेकिन आप जब कोई बीमारी आए खौफजदा होंगे आप क्या कहेंगे जब काल है तो क्या कहेंगे जब तूफान है तो क्या कहेंगे जब शैतान कब्जा करे ज़हन पे तो क्या करेंगे खुदावंद यीशु मसीह का कवि हाथ है उससे शैतान आपको छीन नहीं सकता ये भी यीशु मसीह का वादा है हालेलुया वो कोशिश करेगा छीनने की कि मेरे को फिर वापस आ जाए यीशु मसीह बिल्कुल खींचेगा लेकिन आपको नहीं छीन सकता अगर आप उसके हाथ में आ गए हैं हालेलुया कोशिश करेगा लेकिन घर आपका रूहानी रिश्ता आपका रूहानी कायम रहेगा क्यों कायम रहेगा क्योंकि आपकी बुनियाद किस पर है चट्टान पर है और मैंने यहाँ एक हवाला आपके लिए पहले पढ़ा दोनों हवाले मैंने पढ़े हैं यशाया की किताब में से मैंने हवाला पढ़ा है कि जो इस पत्थर पर ईमान लाएगा वो क्या उसका होगा ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो कायम रहेगा हालेलुया यशाया नबी के सिफर में मैंने पढ़ा है जो इस पत्थर पर ईमान लाएगा वो क्या रहेगा वो कायम रहेगा ये बुनियाद है और फिर मैंने हवाला आपके सामने पहले पढ़ दिया हुआ है फिर क्या लिखा हुआ है पहला पतरस 2 बाब फिर पढ़ देता हूँ आपके हौसले के लिए 6 आयत लिखा है कि जो इस पत्थर पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना हो ना इस दुनिया में शर्मिंदा होगा किसी तरह से खुदा उसे शर्मिंदा नहीं होने देगा काल आएंगे वो अपने लोगों को संभालेगा शर्मिंदा नहीं होने देगा आजमाइशें आएंगी मुसीबतें आएंगी वो आपको उठा खड़ा करेगा आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा आपका मुकाबला तो होगा
लेकिन आप गालिब आएंगे, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, और ना इस दुनिया में शर्मिंदा होने देगा और ना आने वाले जहान में शर्मिंदा। हालेलुया। उस बड़ी अदालत में किसी ने कहा, मुझे सवाल किया, आज आप ना समझो तो काट भी लेनी चाहिए, लेकिन कि सबकी अदालत होगी, सारे उसके सामने खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा वो अदालत का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रवादियों की अदालत होनी, नो 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 नो, उन पर तो सजा का हुक्म नहीं, खड़े तो इसलिए होंगे दाने तरफ लोगों को बताने के लिए कि ये अब शर्मिंदा नहीं आओ, मेरे बाप के लोगों, बादशाही को हासिल करो। अदालत के लिए नहीं खड़े, अजर लेने के लिए खड़ा कर दिया है। जिस तरह किसी को अवार्ड देने के लिए कहते हैं खड़े हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, वो अवार्ड के लिए खड़ा कर देगा आपको, क्योंकि आप यीशु की मलकियत हो, क्योंकि आपका ईमान यीशु पर है, चट्टान पर है, आपके कोने के सिरे का पत्थर भी यीशु है और आपकी फाउंडेशन भी यीशु है। इसलिए इस ईमान में चलते रहें, इस ईमान में तामीर होते चले जाएं, आगे बढ़ते चले। गॉड ब्लेस यू।